Hello everyone and welcome to yet another episode of Parinika. Today Mr. Gaurav Rao is going to join us. Mr. Gaurav Rao is a life coach and he deals in the aspects of yoga, then your depression counseling, sound healing, various other aspects. His client base varies from your school children to corporate personality. He is in this field for past 8 years and in the year 2017 he started with his own company, that is Pragya Living. So let's welcome him and to know more about the life coaching aspects. Let's welcome him. Yeah, he's there. And yeah, just a moment. Hi, how are you? You're Yes, able to hear me? I can hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Can you hear me? Your voice is not Can you coming. hear me? Just, Is it audible? just a moment. Just say, Hi. yeah. Hi, Can you hear me? how are you? I'm good. How are you? I'm fine. Yeah. And how is everything at Delhi? Everything is not good at Delhi. We are just catching up with Mumbai, your place, in terms of Okay. COVID patients approaching you fast. So situation is COVID. almost gruesome here. Daily बहुत सारे patients का number बढ़ रहा है. Recovery rate भी अच्छा है, but still you know you are in Mumbai, तो situation कैसी है? लगभग वैसी ही दिल्ली में हो गई है. या यहाँ पे भी वही हो रहा है कि नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो दैट इज वन ऑफ Yeah. द थिंग. Anyway, thanks for joining us. And guys, he is joining from all the way from Delhi. Basically, he stays at Delhi only, but उनके workshops all over the India चलते हैं. So you can contact him on Pragya Living or on his Instagram account also. जानकारी हम आपको देंगे how to contact him and all. But let's start with the today's session. तो गौरव जी हमको बताइए like लाइफ कोचिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ लाइफ कोचिंग एंड आज की तारीख में दैट इज द करंट सिनेरियो या जो भी करंट थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो उसके अंदर इसका क्या इम्पोर्टेंस है एंड हाउ इट कैन बेनिफिट. Okay. Life coaching is a very broad term. Life coaching is something you can say it is a holistic solution for all your problems in goal setting. Okay. There are different definitions of life coaching. There can be different many variations for it, but for me, how I deal with my clients, what I prepare them for, what I deliver them, I can tell you that it's like Okay. I help them identify where they are and where they want to be. It's like we bridge the gap. Bridge the gap between that thing where they are and where they want to be. Okay. So there's a process I follow. I can identify some steps with it. First step is that I identify their current situation or problem so that we can assess currently where they are. Then the second thing is I clarify with them that is it my right assessment I've done with them? Is it the same problem which they are going through, or is it the same goal I have identified they want to be to go in that direction? Second, the third step is I set goals with them. How we will go towards that solution of that problem, or how will we achieve that goal? We prioritize that thing and we clear action steps. Set a goal and clear action step. Is the fourth point. There's a crystal clear action plan, but obviously there are some room for changes later on. Then the best part of a life coach comes in. All the four steps as an individual, everybody can do it, but and the fifth step is that I encourage them to follow that plan. And after that, the most important is
when they follow that plan, there always there cannot be situation कि ऐसा हो वो जो follow कर रहे हैं, जो उन्होंने plan किया वो plan hit करेगा, वो solution मिलेगा. So then, because of my experience, because I work with n number of clients and different number of clients from all walks of life, so then I can give them. I work with new strategies. I give them new strategies. Okay, plan A is not working. I give them plan B. Plan B is not working. Now plan C. Can you hear me? Am I audible? Yeah. The network issue. I cannot get a response from you. Okay. Can you hear me? You are able to hear me? Hello? आपको आवाज आ रही है मेरी? I can hear you. Okay. I think you can continue. Yeah, so okay. 6 points were there. 7th point is like, I can say it's the most important point of all. That I'm their accountability partner. See, हम as an individual कोई भी goal बना सकते हैं, goal set कर सकते हैं, action plan बना सकते हैं, but there has to be someone जिसके लिए आप accountable हो. आप एक week में, जैसे भी आपका coaching plan में layout होता है, weekly, monthly, वो depend करता है, but accountability होती है. They tell me, my clients tell me कि this was the action plan for this week. I have achieved this much. Now this is the thing. Now I assess them and tell them कि यहाँ गलती हुई, यहाँ solution करने की जरूरत है, ये steps और follow करने की जरूरत है. And the best part is your life coach doesn't judge you in this whole process. जब वो टीचर्स वगैरह के साथ, पेरेंट्स के साथ या इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, वो जजमेंट वाला पार्ट नहीं होता है, तो जिससे आप मेंटली थ्राइव कर पाते हैं इसमें. और लास्ट में इन सब चीजों को फॉलो करते हुए वी गेट रिजल्ट्स. सी, लाइफ कोचिंग इज लाइक ए होलिस्टिक अप्रोच. Actually, I am telling you my personal story. I used to coach people on different aspects. I'm a certified physical trainer also. I'm a certified sound healer. On mental level, I've done a certification of meditation. I teach people meditate. So how to meditate. So I was coaching people on different these scenarios. So my mentor gave me this term. I didn't choose this term for myself, life coach, because I was teaching people. I was giving them knowledge. I was coaching them on different levels. That is namely physical, mental, emotional, social, and also on a spiritual level. How can they elevate their path? So it is a combination of all these things. This was the main idea when Pragya Living was born. So this is the thing as a life coach I do. Okay. So like in your bio, it is like you are in this profession for last 8 years. So earlier, before that, what were you in, and how you came in this field? What brought you here? Okay. Oh, I was into finance before that. Since 12th, I was in finance. I was studying for it. So कहीं मेरे virtues में आई है. Virtues में मतलब ये मुझे विरासत में मिली थी चीज. मतलब मेरी फैमिली से आती, बट आई कुड नॉट आइडेंटिफाई देम. मुझे खूब पैसा कमाना था, इसलिए मैं फाइनेंस के फील्ड में आया. इट वाज माय गोल. आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, वेरी हम्बल बिगनिंग्स, बट स्टिल देयर वाज अ थिंग दैट मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है. सो आई एंटर्ड इनटू द फाइनेंस फील्ड. सो हमारी ट्रेनिंग होती है, सीए की पढ़ाई होती है. उसमें यू पास ऑन योर सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज से पहले यू हैव टू गो अंडर अ ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लाइक ऑफ इंटर्नशिप, बट इट्स मोर ग्रूसम प्रोसेस. अगर आपके जान पहचान में कोई सी होगा तो समझ में आएगा. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ इंटर्नशिप्स जो होती हैं और सबसे लंबी होती है. तो इट वाज माय लक, व्हाट यू विल से, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट लक. अभी मैं बोलता हूँ तो आई एम फील लकी, बट उस टाइम पे आई वाज अनलकी कि मुझे जो इंटर्नशिप मिली, सबसे पहले मुझे मिली एक आश्रम में. आश्रम मतलब दिस वाज अ बिग एनजीओ. वो लोगों के समाज सेवा का काम करते थे, बट क्योंकि फाइनेंस का काम हर जगह होता है, लीगल मैटर्स आर ऑल देयर, तो मेरी ट्रेनिंग मुझे वहां भेजा गया जिस फर्म में मैं था उसकी तरफ से. तो इट अराउंड 1 ईयर में वहां था. तो उस समय में तो आपको गुस्सा आता है, क्या हो रहा है, यंग एज में आप होते हो, आप किस फील्ड के लगे हो, यहाँ कहाँ बाबाओं के बीच में, ये समाज के बीच में काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, समाज सेवा के काम कर रहे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बहुत सारी चीजें होती थी। बट क्या हुआ कि आपने सुना होगा योर एनवायरनमेंट शेप्स यू, आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जो मेरे संस्कार थे, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस आई हैव टू गिव माय, मेरी ट्रेनिंग है तो मुझे ऑफिस आवर्स पूरे देने पड़ते हैं, मतलब उसमें इट्स लाइक आपको अच्छे से घिसा जाता है इस ट्रेनिंग में। तो बट उसके बावजूद मैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद, मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगा, उन चीजों में मैं उन एक्टिविटीज में पार्ट लेने लगा। क्या होता था कि मैं आई यूज टू वेक अप अर्ली। आश्रम का अगर आपको टाइम पता, आश्रम में क्या होता है, आपको 3 साढ़े 3 बजे जग जाना होता है। ऑफिस आवर्स तो वही 9 बजे शुरू होते हैं, उससे पहले की एक्टिविटीज होती है। तो मैं धीरे धीरे, कहा मैं स्पोर्ट्स में था तो जल्दी उठने की मेरी आदत थी, तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में था। तो आश्रम में, बैक टू आश्रम 3:30 बजे जग जाना, उसके बाद वहां चीजें फॉलो करना। जैसे जैसे मैं फॉलो करता गया, उस वो एक है ना मंक वाली लाइफ मुझे पसंद आने लगी। बट चल रहा था कि अभी वो पुराना एक वो था मन में एम्बिशन की पैसा कमाना है, तो ठीक है वो किया। मैं था हरिद्वार में, हरिद्वार इट्स लाइक आश्रम में। तो 1 साल हुआ। नाउ मुझे अपनी फॉर्म में वापस आना पड़ा। नाउ आई वाज स्टडिंग फॉर माय एग्जाम्स, अगेन स्टडिंग एंड वर्किंग आल्सो। देन इट वाज माय, नाउ दिस टाइम इट वाज गुड लक, क्योंकि मेरे सामने आ गया मेरे को, मैं एक दूसरे आश्रम के साथ में रहने लगा। Okay. आश्रम में रहने लगा। इट वाज बाय चॉइस, अभी मैंने चॉइस से किया था, बट ये डिफरेंट उससे था, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट संस्था से था। पहले वाले आश्रम में आई यूज टू लिव लाइक अ मंक, बट वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ हेड शेव हेड करने को नहीं कहा गया, बट माई क्लोथिंग वाज प्रॉपर इंडियन अटायर एंड ऑल। तो ये सब चीजें मेरे को मेंटली शेप अप कर रही थी। दूसरे वाले जब मैं आश्रम में रहा 1 साल में, वहां मैं पढ़ता था, वहां में बहुत सारी चैंटिंग करनी होती थी, मंत्र मेडिटेशन करना होता था। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, फॉलो करना पड़ता है आपको। और वो जब तक आप खुशी से करने लगते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आ गया होता है इस फील्ड में। और मैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं क्या बना सकता हूँ। मैं कभी भी एक कल्ट को फॉलो नहीं करना चाहता था, एक पाथ को फॉलो नहीं करना चाहता था कि आंख बंद करके सिर्फ मैं एक ही फील्ड में चला जाऊं। तो इसलिए मैंने इस बार दूसरा को चूज किया। मेरा लकीली उन्होंने मुझे जगह दी, मुझे अपनाया। तो मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, काम चल रहा था, प्लस मैं उसकी चीजों को फॉलो कर रहा था। वहां पे मैं बिल्कुल हेड शेप पर गया था, लाइक अ मंक, बिल्कुल लाइफ ऐसी थी, जमीन पे सोना एंड ऑल, बिल्कुल ब्रह्मचार्य वाली लाइफ एंड ऑल। इन सब चीजों में क्या हुआ, मेरी पर्सनैलिटी शेप अप करी। और क्या था कि मैं पहले से, बिकॉज ऑफ माई फैमिली वर्च्यूज, मैं सोशल सर्विसेज में था। हमारी फैमिली, पहले वो जबरदस्ती कराते थे घर वाले आपको, मतलब इतना वो मजा नहीं आता, क्योंकि आपका, मेरे मैचेस होते थे क्रिकेट, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, क्रिकेट में बहुत ज्यादा खेलता था, तो मेरे को मैचेस छोड़ने पड़ते थे कई बार, इसलिए तो मजा आता था। बट वो अभी पता चला कि अगर आप सही वर्ड में बोलूं, हिंदी वर्ड में अच्छे से समझाऊं, तो रस आने लगा मुझे इन एक्टिविटीज में। तो मुझे समझ में आया कि लोगों की हेल्प करके जो सुख मिलता है ना, वो कुछ अलग है। हेलो। Hello. Guys, there is a network technical error or network issue, so let's wait for some. He'll join us back due to, I think, due to the technical error, the connection got disconnected. Within a few minutes, he will join us back. Can't see the video. Are you able to see me and hear me? Or I'll just disconnect this video and I'll log in a new video. Guys, due to a technical error, the video got ended, and I think there is some kind of network issue on Gauravji's side. So let's wait for him for a while. Yeah, he's there. Yeah.
हाय, वेलकम बैक। थैंक यू। कहाँ थे हम लोग, कहाँ पहुंचे थे, कहाँ तक टेक्निकल एरर आया था? टेक्निकल एरर, आपको क्रिकेट मैचेस छोड़ने पड़ते थे, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि दूसरों को हेल्प करके अच्छा लगता है। वहां पे थे हम लोग। इसके इसके कहाँ पे? सॉरी, नेटवर्क इशू शायद थोड़ा सा ज्यादा है। यू आर एबल टू हियर मी ना? या नाउ आई कैन हियर यू, यस, यू आर प्रॉपर्ली कि ऑडिबल। you are कि how your journey started as a life coach, how you came in this field. या So you so are you. Yeah. so I start so it was around 7 8 मैं 8 9 साल पहले की आपको कहानी बता रहा हूँ। तो डिफरेंट जब ये हुआ तो अब हम मेरी प्रॉपर फास्ट फॉरवर्ड, जब मैं दूसरे आश्रम के बाद मेरी दोबारा से ट्रेनिंग हुई, नाउ इट वाज इन, इट वाज प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट जो मुझे कोर्स खत्म करने के बाद जिसमें आना था, आई वाज वर्किंग इन दैट। Okay. कैन यू हियर मी? It's breaking. It's breaking. Break हो रहा है बीच में। ओके ओके, I think networks are full. I don't know what's the issue. दिल्ली साइड में नहीं, मेरे what you स्टूडेंट्स can भी इसीलिए। what you can say about it. So uh, after I was working in a proper corporate environment, I was working through MNCs. I got an offer of going out of India also. So see, I was having opportunities जहाँ मुझे पहुंचना था, जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी, वो पैसा कमाना था, जो मेरा गोल था वो पूरा हो रहा था। बट क्योंकि अब मैं प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट था, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था वो काम। मुझे समझ में आने लगा कि आई एम नॉट फॉर दिस फील्ड। तो मैंने बहुत सोचा, घर वालों से बातें हुई, घर वालों ने बहुत अपोज भी किया। जब मैंने कहा कि नाउ आई वांट टू क्विट दिस, मेरे को अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया, आई हैव टू फॉलो दिस। तो एज इंडियन फैमिलीज सबको लगता है कि ये क्या बेवकूफी कर रहा है। वो तो शुरुआत में फ्रिक्शंस हुए, बट मैंने सबके अगेंस्ट जाके शुरुआत में माय फादर वाज विद मी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वो समझते थे कि जो सेटिस्फेक्शन है इसमें, लोगों की लाइफ चेंज करने में, लोगों को हेल्प करने में, जो चाहते हैं वो अचीव करने में। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये 8 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता था। तब तक मैंने कुछ मतलब एक कंपनी फॉर्म नहीं करी थी। फिर 2017 के एंड में हमने सोचा कि अब एक लीगल एंटिटी फॉर्म करनी चाहिए, जिससे कि हम उसकी रिक्वायरमेंट हो गई थी। तो हमारी टीम थी, हम लोगों ने एक प्रॉपर टीम बिल्डअप करी और फिर हमने कंपनी फॉर्म करी। इस तरीके से जर्नी। ओके, यू आर ऑल्सो, जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग थी। एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट आपने एक्सेप्ट किया कि आपको पैसा कमाना था। तो बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पैसा तो सबको कमाना होता है, बट मेनी ऑफ द पीपल आर लाइक नहीं, ये व्हाट्स प्रोफेशन द, चुन लिया। या यस, मेरा मानना था हमेशा से कि जो काम होता है ना आपका, वर्क वर्क इज, मैंने कहीं ये बचपन में पढ़ लिया था, जो मेरे को स्टक कर गया था, कि वर्क विल कंज्यूम 70% ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ। जो आप काम करते या हैं उसमें आपकी लाइफ का 70% टाइम जाने वाला है। तो इट शुड बी फुलफिलिंग। आपकी आत्मा को शांति, मतलब मजा आना चाहिए, आना चाहिए उस काम करने में, फुलफिलिंग होना चाहिए। तो सिर्फ एक यही गोल था। मनी अर्निंग सबको कमाना होता है पैसा, बट वो काम करते हुए अगर आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, लोगों की लाइफ अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, तो एक चेंज जो क्रिएट करते हैं वो जितना फुलफिलिंग होता है, वो आई कैन सी नाउ। मेरे को 8 साल हो गए हैं, लगभग 8.5 साल। तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है वो अल्टीमेट लेवल का होता है। बिलो आई कैन नॉट express the satisfaction I have now. आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इवन आई हैव डन समथिंग लाइक दैट। मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया टू फॉलो माई पैशन, तो आई कैन रिलेट टू दैट। What was your journey? I'm from IT field, so Oh, interesting. I मैं was तो into आपको anim. जी एज अ भरतनाट्यम स्टार डांसर ही जानता हूँ। हाँ, सब मेरे को अभी वही जानते हैं, एंड आई लव दैट आइडेंटिटी ओनली, और मेरे को वही रखना है लाइफ लॉन्ग। दैट्स इट। So anyway, today is your interview. So next time you take my interview, तभी I'll answer you.
Okay, please. Okay. Now we also know कि you are a certified sound healer. Sound healing Yeah. जो होता है, what is this sound healing and इसका क्या importance या इसका क्या you know how it affects our life? Sound healing क्यों जरूरी है and how it affect our life? What changes we can bring through sound healing? Okay. साउंड हीलिंग हम बात करेंगे, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है इसके, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। साउंड हीलिंग, आपने चरक ऋषि का नाम सुना हो, जो जिन्होंने मेडिसिन, आयुर्वेद में मेडिसिन का या ऑपरेशन सर्जिकल उस पर बात करी थी, उन्होंने एक वर्ड दिया था संवाहन। संवाहन इज लाइक सिनर्जी बिटवीन एनर्जी एंड वाइब्रेशंस टू ट्रीट इलनेस। दूसरे भाषा में समझाऊं मॉडर्न लोगों के लिए जो साइंस को समझते हैं, आइंस्टाइन ने भी कहा था एवरीथिंग इज नथिंग बट वाइब्रेशन। क्वांटम फिजिक्स जिन्हें समझ में आती है फिजिक्स की भाषा में, क्वांटम फिजिक्स इज लाइक कि जिन्हें स्पिरिचुअलिटी को समझना है उन्हें क्वांटम फिजिक्स समझनी पड़ेगी। तो क्वांटम फिजिक्स की भाषा में यूनिवर्स इज नथिंग बट ए स्ट्रिंग्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस के धागे हैं, वाइब्रेशंस के अलग अलग लेवल्स हैं, वो है। तो साउंड इज लाइक द बेसिक, द फर्स्ट साउंड जो थी यूनिवर्स की, जो सनातन धर्म को मानते हैं या किसी भी चीज वो उन्हें पता है कि ओम वॉज द फर्स्ट साउंड, साउंड वॉज देयर। जो साइंस को मानते हैं उन्हें पता है बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, सब मानते हैं इसको। जो धर्म को नहीं मानते वो इसको मानते हैं, जो अथीस्ट होते हैं, कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, एक्सप्लोजन हुआ था, तब ये दुनिया बनी थी। तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस हुई थी। मतलब साउंड इज लाइक द इंसेप्शन, जब से अर्थ बनी है तब से साउंड की सिग्निफिकेंस है। देखिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप साइंस की हम थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं, साइंटिफिक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि तभी हमारी जनरेशन को बेसिस को समझ में आता है और होना भी चाहिए। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और ये हर किसी को पता है कि एटम्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो चलते रहते हैं, इधर से उधर होते रहते हैं ना। तो क्या होता है कि साउंड इज लाइक अ वाइब्रेशन। हम ये समझ सकते हैं साउंड इज अ वाइब्रेशन, अवर थॉट्स आर वाइब्रेशन, और सो everybody when everything is see the chair you are sitting is a piece is a piece imbibed together। कई सारी वाइब्रेशंस थी, कई सारे एटम्स मिलके वो पीस बना रखे, क्योंकि एक एनर्जी ने उस वाइब्रेशंस ने उसे होल्ड कर रखा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना, उसके लिए मैं सिंपल उसमें समझाता हूँ कि इंटर रिलेटेड है। साउंड इज वाइब्रेशन, और हमारे थॉट्स भी वाइब्रेशन है, और हमारी बॉडी भी एक वाइब्रेशनल लेवल पे है। वो सारे एटम्स एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए हमें वो अलग अलग फॉर्म्स दिखती हैं सब छोटे छोटे एटम्स ही वो एक शेप में आ गए हैं। तो जब भी क्या होता है कि साउंड हीलिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है, डिसीज होती है, तो डिसीज होती है, तो हमारी जो ऑप्टिमल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की, जब आप थोड़ा डीप जाएंगे इसमें समझ में आएगा, इसमें हर ऑब्जेक्ट एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो जो हमारी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होती, उस हमारी ऑप्टिमम लेवल पे हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हमारी बॉडी एक बहुत ही मैजिकल चीज है। क्यों मैजिकल है हमारी बॉडी? कि हमारी कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं ना बॉडी में, कुछ भी डिसीज होती है, हमारी बॉडी खुद हील करना जानती है। बट क्या होता है कि हमारी बॉडी क्यों हील नहीं कर पाती कई सिचुएशंस में? क्योंकि हमने ऑप्टिमम वो अपनी उस पे नहीं होती। किस पे? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नेचुरल, उस पे नहीं होती। तो साउंड हीलिंग के माध्यम से, साउंड हीलिंग के थ्रू हम उस फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में मैच कराते हैं। तो तब वो एक स्टेट में आती है जहां वो अपने ऑप्टिमम नेचुरल स्टेट में काम कर पाए। ठीक है। साउंड थेरेपी इज लाइक वेरी वेरी पावरफुल मीडियम फॉर रीचिंग आवर सेल्स। क्या होता है कि इसको इस तरीके से समझिए, 70% हमारी बॉडी में वाटर है। ये आपको पता है, सबको पता है, हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं। तो 70% वाटर है। जब आप इस बात को समझिए कि अगर हम एक पेबल डालें पानी में, पत्थर डालते हैं, तो एक रिपल इफेक्ट होता है। सेम तरीके से हमारी बॉडी पे काम करता है। क्या होता है जब हम साउंड हीलिंग देते हैं, जब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से साउंड हीलिंग दी जाती है, आपने कुछ इफेक्ट किया, तो ये इसके टेक्निकल टर्म्स पे काम ऐसे करता है कि जब पानी में वो साउंड रिपल इफेक्ट डालती है बॉडी में, और डिफरेंट पोर्शंस में हमारे सेल्स तक रेजुविनेशन पहुंचता है, वो सेल्स को हिट करती है वाइब्रेशंस।
तो क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो रिलीज होते हैं सेल से। इट्स लाइक कि आप कहेंगे कि ऐसा क्या चमत्कार होता है कि टॉक्सिन रिलीज होते हैं, अच्छी एनर्जी क्यों नहीं रिलीज होती? देखिए, हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो है ब्लिस की स्टेट, ह्यूमन बींग्स की। हमें यूनिवर्स ने बनाया है एक ब्लिस ब्लिस का आनंदमय स्टेट के लिए। उसके अलावा जब भी कुछ बिगड़ता है तो चीजें टॉक्सिक होती है, तो टॉक्सिसिटी को हटाती है साउंड। सेल्स में हमारे टॉक्सिक जमा हो जाते हैं तो जो डिसीजेस इलनेस का शेप ले लेती हैं। तो साउंड हीलिंग का सबसे जबरदस्त फायदा होता है कि ये हमारे अल्फा और थीटा ब्रेनवेव पैटर्न को स्टिमुलेट करती है। अल्फा और थीटा ब्रेनवेव पैटर्न क्या होता है, अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊं, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो जो बात हो रही होती है मेडिटेशन, जो हाई मेडिटेशन होता है वो कहता है ना, एक हाई मिलता है, मजा आता है, मजा। वो मजा जो होता है वो होता है अल्फा और थीटा, उस ब्रेन पैटर्न में होता है, अल्फा और थीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं। अल्फा Okay. थोड़ी निचली लेवल पे होती है और थीटा उससे और ऊपर लेवल पे। इट्स लाइक स्टेज ऑफ हिप्नोसिस। Okay. तो अब आप अपने नए आइडियाज वहां इम्प्लांट कर सकते हैं, नई चीजें डाल सकते हैं, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में और खुल के। इट्स लाइक कि और इस स्टेट में क्या होता है, हमारी बॉडी नेचुरल पेन किलर्स रिलीज करती है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं। Hmm. ठीक है, अल्फा और थीटा ब्रेन में पैटर्न्स जब चल रहे होते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज करते हैं। तो इसीलिए जब मैंने आपको, हमारी पहले भी बात हुई थी, मैंने बताया था क्यों इससे डिसीजेज हील होती हैं, इसलिए डिसीजेज हील होती है। ठीक है। और तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, इससे न्यूमरस एन नंबर्स ऑफ डिसीजेस हील हो सकती हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं इसके मेरे क्लाइंट्स के साथ, उसमें से एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्प मिलती है। इट्स लाइक कंप्लीट इरेडिकेशन। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स होते हैं, अडल्ट में भी होते हैं, बच्चों में भी होते हैं, उसमें बहुत फायदा मिलता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा टॉपिक, और इस समय आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रहा है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है, तो उसे हमें लग समझने की जरूरत है। डिप्रेशन की बहुत हीलिंग होती है, डिप्रेशन में फायदा होता है। इंसोम्निया, नींद की जो प्रॉब्लम होती है, हमें नींद नहीं आ पाती है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एनी रीजन, हार्मोनल इम्बैलेंस, नींद इंसोम्निया जो आप होते हैं इसको फायदा मिलता है। ऑटिज्म के मैनेजमेंट में, ऑटिज्म आप जानती हो, अगर मैं रेफरेंस दे सकूं, माय नेम इज खान ने उसको पॉपुलर किया था। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ दैट फिल्म कि उसने ऑटिज्म को बताया। माय सिस्टर इज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, सो शी डील्स विद एन नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ ऑटिज्म। मेरा भी एक्सपोजर कम हुआ है, बट जिनके साथ भी हुआ तो पता चला कि मैनेजमेंट अच्छा हो पा रहा है। देख, द किड्स आर एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स बेटर, टू लर्न थिंग्स बेटर। उसके अलावा जो आपके पास ट्रॉमास हैं वो लेट गो करने में, वो हील होने में। Your voice is breaking. Hello. Voice is breaking. Repeat. You will have to repeat जो आपने बोला because network error आ रहा था, तो just repeat that sentence. ऑटिज्म के बारे में बात हो गई थी, हाँ. है ना? ऑटिज्म के बारे में बात मैंने देखे इसके चीजें कहाँ ये हेल्प करता है। ये करता है हीलिंग या पास्ट ट्रॉमास। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते हैं, अगर नहीं है तो जिसकी लाइफ में नहीं है दैट पर्सन इज वेरी लकी, बट किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते हैं जिनको हम लेट गो नहीं कर पाते, तो उस टेंशन को, उस रिसेंटमेंट को रिलीज करने में ये हेल्प करता है। तीसरा, अभी मैंने बताया था एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो नेचुरल, एज अ नेचुरल पेन किलर ये एक्ट करता है। मेरे कुछ क्लाइंट थे, क्योंकि क्या होता है हमारी जर्नी में हम एग्जैक्ट केस स्टडी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, बट देयर वाज अ क्लाइंट जिनका ऑपरेशन हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ हिज डायबिसिटी वो पेन किलर्स वगैरह नहीं ले सकते थे ज्यादा। तो देन आई यूज्ड इट एज अ पेन किलर इंड्यूसमेंट। वहां इफेक्टिवली पता चला एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कोई चोट लगी है, वहां पे एज अ पेन किलर तो बहुत अच्छे से काम करती है, बट वहां भी जहाँ पे थोड़ी सिचुएशन ज्यादा बड़ी थी, वहां पे भी इसने काम किया, तो इट वॉज वेरी गुड। कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर पेशेंट्स को, उसके बाद क्या होता है, एक तरह से कीमोथेरेपी के बाद बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं। Yeah. आपकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती है। इट्स लाइक खून, मतलब थोड़ा लेमन टर्म्स बोले, खून सूख जाता है, हीमोग्लोबिन आपका बहुत कम हो जाता है। तो उस
स्टेट से आपको रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैंने खुद पर्सनली देखा है अपने क्लाइंट्स के साथ। और लास्ट एक मैं बताना चाहूंगा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में फीमेल्स को जो होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है ये। जितने भी अनइवन पीएमएस होते हैं, उसके अलावा और भी पीसीओडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, वो सारे हील करने में बहुत हेल्प करती है। ओके, आई विल सजेस्ट, मतलब जितने भी अपने ऑडियंस है जिन्होंने साउंड हीलिंग नहीं ट्राई किया है, इट्स अ मस्ट ट्राई, बिकॉज जैसे उन्होंने बोला ना, इट एक्चुअली रिलीजेस द टॉक्सिक जो आपकी बॉडी में होते हैं, वो उसको निकालते हैं। एंड आई थिंक देयर आर वेरियस सेशंस ना, मतलब किसी किसी के ऊपर, हर एक के ऊपर इट डिपेंड्स कि हाउ मेनी सेशंस अ पर्सन विल हैव ऑन द रोड। गौरव जी, आई वॉज गोइंग टू कम बैक टू द पॉइंट मेंटल हेल्थ, जो अभी का टॉपिक है, दैट इज मेंटल हेल्थ। आज के सिनेरियो में, टेक इट एज अ कोविड का जो सिनेरियो है, उसके अंदर मेनी ऑफ द पीपल, लॉकडाउन की वजह से मेनी ऑफ देम, जो डिप्रेशन रेट था वो काफी इंक्रीज हो गया है, पहले से काफी इंक्रीज हो गया है। सो इस स्टेट में मेंटल हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ गया है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स, स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी, ये देखा जाता है कि जब भी कोई इंसान मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है या कोई भी डिप्रेशन से, बिकॉज सी इट्स एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम द डिप्रेशन, बट एक्सेप्टेंस के ऊपर है। समटाइम पीपल आर नॉट अवेयर कि वो लोग डिप्रेस है या टेंशन में है, समटाइम दे आर अवेयर, बट जो इंडियन सोसाइटी में इसका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है? आर पीपल फ्रीली इनफ टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि अभी करंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो शायद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को। पर कुछ टाइम पहले तक, कुछ महीनों पहले तक, आई थिंक सुशांत वाले एपिसोड से पहले नहीं थी चीजें इतनी इजी। और अभी भी डिप्रेशन को लेके लोगों की समझ में थोड़ी आई थिंक कमी है, या कि वो डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लिए कि डिप्रेशन होता क्या है। और ये तब तक चलता रहेगा, क्यों नहीं समझेंगे हम, जब तक हम डिप्रेशन को या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मेंटल इश्यूज को स्टिग्मा मानेंगे। अगर आप मेरी फ्रेंड हैं, या मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड से भी अपने मेंटल इश्यूज के बारे में डिस्कस करने से डरता हूँ, क्योंकि कहीं ना वो मुझे ना समझने लग जाए कि ये मेंटली डिसेबल है, ये पागल है। सबको ये डर लगता है। और होता क्या है कि जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, तो वो किसी से बात, एक तो लोग समझते नहीं है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में। मैं इसलिए कहा हमारी कम्युनिटी, क्या होता है डिप्रेशन, तू पागल है क्या, किस सोच मत। अब मैं आपके पास आया, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा, अरे तू ज्यादा सोच रहा है, सोच मत, है ना। दूसरा, अगर कोई समझता है तो वो मान लीजिए आपका फ्रेंड अच्छा हो, उसने आपको समझा, तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, हम पिटी करने लग जाते हैं, अरे बेचारा। पर जो डिप्रेशन के स्टेट में होता है ना उसे आपकी पिटी चाहिए होती है, और वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए होता है कि आप समझे ना उसकी चीज को, जज करें। तो बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको डील करना होता है डिप्रेशन में। और ये कब होगा? जब हम डिप्रेशन को इस टाइफाइड की तरह या टीबी की तरह ट्रीट करने लगेंगे। क्योंकि डिप्रेशन मेंटल इशू है, पर मेंटल इशू एक ऑर्गन का है, ब्रेन का, बिकॉज ऑफ ब्रेन। mental health is a intangible term. You cannot touch it, but it is related to a organ, that is your brain. ठीक है, कि जैसे किडनी डिसऑर्डर होता है, टीबी होता है, लंग्स में होता है, किडनी डिसऑर्डर होता है, तो टाइफाइड होता है, लीवर में होता है, लीवर में डिसऑर्डर होता है, इसलिए होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना कि हमारे एक ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई है, जैसे और ऑर्गन्स में होती है, और इसका एक सॉल्यूशन है, तब तक वो स्टिग्मा से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। एक बहुत ही प्यारी वीडियो है, एआईवी का, आपने नाम सुना होगा, मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी। एआईवी की मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर कोई चाहेगा तो। उसमें बड़े सटायरिकल वीडियो है वो, मतलब कमेंट्री फॉर्म में। उसमें बताया गया है कि हम उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि टाइफाइड को एज अ डिप्रेशन ट्रीट कर रहे हैं, उसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हो। सोसाइटी में दिखाया गया कि हम कैसे डिप्रेशन को, धीरे बोलो, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे को पागल समझेगी सोसाइटी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं होता। वो एक प्रॉब्लम होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है। और मैंने अभी देखा कि काफी बातें हो रही है सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में हो रही है, पर ये समझने की जरूरत है कि हम टाइफाइड की बात करते रहें और लीवर की बात ना करें तो सॉल्यूशन नहीं है, है ना।
हम ये बोले कि मैं लीवर टाइफाइड ठीक कर दूंगा बट लीवर को रिस्टोर नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें होलसम अप्रोच की जरूरत है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ के इश्यूज ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ब्रेन हेल्थ पे ध्यान दें। ओके। अपने फिजिकल ऑर्गन को हम जब ठीक रखेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ अपने आप, दे आर इंटर रिलेटेड, अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन है ना, इट इज एन ऑर्गन ऑफ, it is the organ of decision making, and when you make decision better, you will be healthier, happier and wealthier, because सब कुछ आपकी लाइफ में डिसीजंस पे मैटर करता है। बट अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जब ब्रेन आपका फंक्शन नहीं करेगा सही तरीके से, तब आपको ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। आप, यू विल बी सिकर, यू विल बी सैडर, and it will be like you will always in a constant stress. You will have problems like ADHD and depression. So आपको चाहिए कि आपका ब्रेन ऑप्टिमल फॉर्म में कैसे काम करे। अगर आपको मेंटल हेल्थ की बात, मैं अब आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ मेंटल हेल्थ के, बट इस फॉर्म में कि ब्रेन हेल्थ पे कैसे ध्यान दें। ब्रेन को ठीक करेंगे तो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ इसको क्लियर करने, इजी बनाने के लिए, कि अब आप एक चाहें तो व्यूअर्स एक पेन पेपर ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको काफी यूजफुल रहने वाले हैं, सिर्फ डेली लाइफ में सब लोग फॉलो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, तो ब्रेन हेल्थ पे जब बात करूंगा तो इसमें सबसे पहली आएगी ब्लड फ्लो। ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड फ्लो। क्यों? ब्लड हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, वापस लेके जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। ठीक है, जब ब्लड फ्लो कम होता है बॉडी में, या ब्लड फ्लो हैम्पर होता है, तो क्या क्या डिसीजेज होती है हमें ये समझने की जरूरत है। अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर होता है, एडीएचडी होता है, डिप्रेशन होता है, हार्ट डिसीज, हार्ट ब्लॉकेजेस की होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अभी आप कहेंगे कि गौरव जी आप हार्ट दिमाग की बात करते करते हार्ट पे क्यों आ गए। मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके ब्लड फ्लो में किसी एक मतलब किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है ना, चाहे वो कहीं भी है, तो वो हर जगह है। मतलब अगर हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है तो इसका मतलब आपके ब्लड, आपके ब्रेन तक भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ठीक तरीके से। ओके, तो आपको एड्रेस करने की जरूरत है। और हाई बीपी की जब आपको प्रॉब्लम होती है, आपको समझना पड़ेगा हाई ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड फ्लो इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। मतलब जितना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना आपका ब्लड फ्लो कम होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई कि ब्लड फ्लो कितना जरूरी है। अब ये होता क्यों है, कॉमन प्रॉब्लम्स हमें पता होनी चाहिए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हम कॉफी ज्यादा पीते हैं, कैफीन इनटेक बहुत ज्यादा हो गया, निकोटीन, चाय, चाय को क्योंकि हम सोशली बहुत एक्सेप्ट करते हैं तो ज्यादा मात्रा में पीते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस देता है। ओके, स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत रैम्पेंट है, प्लस सिडेंट्री लाइफस्टाइल, व्हेन यू डू नॉट एक्सरसाइज तब ये होता है। आपको देखिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि एक्सरसाइज हम तभी करें जब हमें पतला होना है। अगर मेरा वेट 50 केजीज है, मेरे बीएमआर ठीक है, तो मतलब मैं पतला हूं, मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पतला होने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने न्यूट्रिशन से 90% आप पतले हो सकते हैं। उस पर कभी और बात करेंगे क्योंकि मैं वो भी डील करता हूँ। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज करना इज नॉट मैंडेटरी पतला होने के लिए। तो जो पतले लोग हैं वो इस गलत फहमी में ना रहे कि हमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। नहीं, एक्सरसाइज करने के और बेनिफिट्स, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपके डोपामिन रिलीज होगा, कॉर्टिजोल कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, डोपामिन द गुड हार्मोन, द प्लेजर हार्मोन विल रिलीज। तो बहुत फायदे हैं, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि होता क्यों है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है बट नॉट इजी टू फॉलो। एक है एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, सिंपल है। कोई सी फॉर्म आपको जो पसंद हो, नहीं पसंद समझ में आ रहा, शुरुआत करें वॉक से कर दो। इनकी वजह से होता है उनको रिवर्स कर दीजिए ऑल टुगेदर। कैफीन का एडिक्शन है, बहुत ज्यादा पीते हैं, कम कर दीजिए। एकदम से नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, कम करिए। चाय
4 कप पीते, 5 कप पीते, 1 से 2 पे ले आइए, धीरे धीरे कम कीजिए, फिर इफेक्ट्स आपको खुद दिखने लगेंगे। तीसरा, मैं एक बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट है, आपको पसंद हो या ना हो, टेबल टेनिस। According to the latest research, it is the best brain game according to the latest research. मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं था, पर जब से मैंने थ्योरी पढ़ी है पिछले 3-4 महीने से, और स्पेशली लॉकडाउन में, तो मैंने इसको ट्राई करना शुरू कर दिया। मैंने बचपन में बहुत ज्यादा टेबल टेनिस खेला था, बट इट इज द अकॉर्डिंग टू बेस्ट। एक स्टडी भी आई कि पार्किंसन के पेशेंट्स थे, उनके 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप को जब हीलिंग उन पे ट्राई करने के लिए, एक ग्रुप को बोला गया कि आप सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग करिए, और उसके बाद ये बोला, Hello. The network is giving an issue. के पार्किंसन वाले पेशेंट में 50% मोर इम्प्रूवमेंट था जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग करी, नॉर्मल एक्सरसाइज। तो टेबल टेनिस इज अ ब्रिलियंट गेम, आई कैन अश्योर यू, यू शुड प्ले इट, क्योंकि आपका हैंड, आई, फीट, तीनों मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन एक साथ हो रहा है। तो इट्स लाइक यू आर एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, एंड आपकी ब्रेन एक्सरसाइज भी हो रही है। डांस अमेजिंग, आप भरतनाट्यम टीचर हैं, डांस इज अमेजिंग ब्रेन एक्सरसाइज। You can say it is a par with table tennis. Blood flow increase होता है, sweating होती है, it's like you bring out the creative energies out of you. It's like amazing, you know that you are following that passion of yours, so you know that. And also at last you can use like you can try some foods to increase the blood flow. अगर आपको प्रॉब्लम है तो पेपर बहुत अच्छा चीज है, पेपर को आप यूज करिए। पेपर स्पेशली ब्लैक पेपर से आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स, उससे हेल्प मिलेगी। एवोकाडोज, इंडिया में थोड़ा कॉन्सेप्ट इनका कम है, तो आई विल नॉट पुश इट लाइक दैट, बट एवोकाडोज हेल्प करते हैं क्योंकि फैटी एसिड्स होते हैं। नट्स खाएं। इसके अलावा ग्रीन टी पिए, ग्रीन टी को ओवरडू ना करें, बट पिए। ग्रीन टी इज वेरी गुड अल्टरनेट टू कैफीन एंड दैट nicotine of tea. Garlic is very good, you should take it. And dark chocolate without sugar, you should have it. Dark chocolate without sugar is very, very helpful. Second thing, first point, blood flow. Grab your pen paper and write down, it will be beneficial, you can use it in your daily life. Second is like aging, you have to understand when you stop learning, it's like your brain starts dying. So you have to understand that you have to be in this constant process of learning something new. Whatever is your age, you cannot stop learning new things. You may ask what can be these things. Learn a new language, learn a new instrument, learn dance, learn painting, that brings the creativity out of you. Learn anything, but learn. Keep on learning. That's how you can keep your brain active and more young. And also मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आयरन लेवल्स की हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए। आयरन लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या होता है, जब हमारे बॉडी में आयरन लेवल्स कम होते हैं तो एंजाइटी और डिसऑर्डर्स होते हैं, और जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन ऑल टुगेदर एक होल कॉन्सेप्ट है, तो मैं भी बताता हूँ इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो आयरन को बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे हमें लेना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड के लिए। सबको पता है हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, करना है, तो ब्लड फ्लो के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन, बट उसे ऑप्टिमम लेवल पे आप अपने टेस्ट करवाइए रेगुलर, और देखिए कि आप कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसे मैनेज करिए। मैनेज कैसे करेंगे, एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से आप हेल्प लीजिए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया, जब आयरन लेवल ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन लगभग 90% बीमारियों की जड़ होती है। ओके, इन्फ्लेमेशन इज लाइक कि हमारी बॉडी में आग लगी हुई है हल्की सी, और वो धीरे धीरे हमारे ना ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करती है। इन्फ्लेमेशन क्या है कि अभी अवेयरनेस बढ़ गई है यूट्यूब चैनल्स की वजह से, या किसी भी तरीके से लोग अवेयर हो गए हैं,
तो इट्स लाइक कि समझने की जरूरत है लोग से कैंसर हो जाता है, बट लोगों को ये नहीं पता कि इन्फ्लेमेशन जब आपकी बॉडी में होती है और आप उसे हील नहीं करते तो आपको डिप्रेशन और डिमेंशिया भी होता है। डिप्रेशन का वन ऑफ द मेन रीजन इन्फ्लेमेशन भी है। हमें समझने की जरूरत है अगर जी प्लीज। या इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई इट एट अ अर्ली स्टेज? ओके, हाउ टू नो अर्ली स्टेज, एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए जिसमें स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल आपको चेक कराना पड़ेगा। Okay. दूसरा, अगर आपको सेल्फ टेस्ट भी करना है कि आप कहें कि मैं, तो आप ये देखिए कि आपकी बॉडी में कहीं सूजन तो नहीं हो जाती। कुछ भी नहीं करते, आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सूजन तो नहीं हो जाती, या कहीं भी पेन तो नहीं होने लगता बिना मतलब के, कोई चोट नहीं लगी, पेन तो नहीं होने लगता, रैशेस तो नहीं हो जाते, मतलब इट्स लाइक कि बॉडी की एसिडिटी तो नहीं हो जाती। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, 2 कप चाय पी रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी लाइफ भी नहीं, वेल बैलेंस भी नहीं, बट एसिडिटी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, हीट रैशेज हो जाते हैं, तो इट्स लाइक कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हिट होने लगती है। तो ये आपके आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस पर। आई होप आई एम क्लियर। अब सॉल्यूशन क्या है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के? कुछ मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ जो बहुत कारगर है, मेरे क्लाइंट्स के साथ काम करता है इन्होंने, और पर्सनली मैं खुद फॉलो करता हूँ, एंड एवरीबडी कैन फॉलो इट। सबसे पहला इज ओमेगा 3 को ऑप्टिमम लेवल पे लेना। नॉन वेजिटेरियन है आप तो फिश खा सकते हैं, फ्रेश फिश खाइए, टॉक्सिन फ्री। अब टॉक्सिसिटी बढ़ रही है सी पे, तो वरना फिश नहीं खा सकते, फिश ऑयल खा लीजिए। अब वेजिटेरियन है तो फ्लैक्सीड ऑयल लेना पड़ेगा आपको, फ्लैक्सीड ऑयल लीजिए, अमेजिंग सोर्स फॉर वेजिटेरियंस। डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फ्लेमेशन में ना। क्या होता है कि समझने की जरूरत है, अगर आयुर्वेदिक टेक्स्ट में एक फॉर्म है, आपको अपना बॉडी टाइप पहचानने की जरूरत होती है। वात, पित्त और कफ 3 बॉडी टाइप्स होते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल डाइट सिस्टम के हिसाब से भी चलें तो हर डाइट प्लान हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। जो एक बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो हमेशा आइडेंटिफाई करता है अपने क्लाइंट की नीड्स को, उसके बॉडी टाइप को, और उसके हिसाब से फूड्स देता है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम में और इन्फ्लेमेशन में स्पेसिफिकली। कि देखना होता है कि आपकी बॉडी किस चीज पे रिएक्ट कर रही है। हो सकता है डेयरी मेरे लिए बहुत अच्छा हो, बट माई फादर कैन बी लैक्टोस इंटॉलरेंट, उनको डेयरी से इन्फ्लेमेशन होता हो। ग्लूटेन, इंडिया में ज्यादातर लोग को लगता है कि उन्हें वीट अच्छा रहता है, वीट पचता है, बट कई सारी कई सारे लोगों को, मिलियंस में लोगों को नहीं पता कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती रहती है और वो भारी चीजों पे काम करते रहते हैं। तो आपको पहचानने की जरूरत है कि हमें फॉलो करना, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि मेरी बॉडी टाइप क्या है, मुझे क्या, कौन से फूड, कौन सा फूड मेरे लिए बेकार है, मेरे बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उन चीजों को आइडेंटिफाई करके उसे हटाना है। सेफ्रॉन सबसे महंगा स्पाइस होता है, केसर, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूड अपलिफ्टिंग थिंग। आप यूज कर, केसर का एक दाने से भी ना इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत जबरदस्त है सेफ्रॉन, केसर। और दूसरा मूड अपलिफ्टिंग, जब आपको लग रहा हो एंजाइटी हो रही है और आपको इंस्टेंट कुछ चाहिए, तो मैं आपको चीट कोड बता रहा हूँ, यूज सेफ्रॉन इन योर फूड, या नॉर्मल अपने चाय में केसर वाली चाय होती है जो आपको पसंद है, उस दूध में केसर उसे डाल के यूज करिए, तो इट विल बी लाइक अ इंस्टेंट बूस्टर फॉर यू। इसके अलावा विटामिन डी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए और इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। विटामिन डी कैसे मिलेगा? एक, सन, टोटल एक्सपोजर सन, और 11 से 2 के बीच में सबसे ज्यादा विटामिन डी निकलता है, तो 11 से 2 के बीच में आप अपना एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा रखिए। बट अब आप कहेंगे कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, मैं ऑफिस में होता हूँ, पैक्ड होता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स आते हैं और जरूरी है वो सब, वेरी गुड, यू शुड। मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताया इसमें। अब ये समझने की जरूरत है कि ये 4 पॉइंट, इसके साथ मैं दे रहा हूँ आपको एक रामबाण चीज जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है अपने न्यूमरस क्लाइंट्स पे और खुद पे भी।
दैट इज प्राणायाम। इन्फ्लेमेशन अगर आपको ठीक करना है अपनी बॉडी में, तो देन आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे प्राणायाम तो बहुत टिपिकल चीज है, मैं नहीं कर सकता। शुरुआत डीप ब्रीथिंग से करिए, सिर्फ और सिर्फ डायफ्रामिक ब्रीथिंग। डायफ्रामिक ब्रीथिंग मतलब डायफ्राम को कॉन्शियसली हम डायफ्राम को ध्यान में रखते हुए सांस लें, डायफ्राम फूलेगा, सांस छोड़ दें, सिकुड़ेगा। इससे चालू कर सकते हैं। फिर डिफरेंट प्राणायाम है आपके, अनुलोम विलोम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फिर आपका उज्जैन प्राणायाम है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, चंद्र भेदी प्राणायाम है। वो देखिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, कौन सा बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आप चंद्र भेदन प्राणायाम नहीं रख सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्राणायाम रामबाण इलाज है, बट हर चीज हर किसी चीज बदलने के लिए काम नहीं करती है। जैसे मैंने डाइट के लिए बताया, वैसे ही हमें कोई टीवी पे योग करा रहा है, और जो जो योग करा रहा है वो 20 सालों से अगर कोई योग कर रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत है हमारी बॉडी को क्या लगे, हमारी बॉडी की क्या जरूरत है। मेरे पेशेंट थे, अभी मैंने डील कर रहा था कुछ टाइम पहले, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। अब डिफरेंट डिफरेंट आसन होते हैं, बहुत अच्छे किसी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जितने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन थे वो नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो मतलब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैंने उनके वो आसन बंद करवाए, उन्हें सिर्फ उनके हिसाब से जो उन्हें हील करने में हेल्प करे वो आसन बताए गए। क्यों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन है, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल सॉल्यूशन, बट आपको ये देखना है, यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट आपके लिए क्या काम कर रहा है। ओके इसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन के बाद में आता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स। क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैं मोटा हूं, क्यों, मेरे पापा मम्मी मोटे थे, मेरे जीन्स ऐसे हैं, मेरे नाना नानी है। मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है क्योंकि आई एम प्रोन टू डायबिटीज, क्योंकि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, मेरे दादाओं को थी, पुरखों को थी, तो मेरे को। बट हमें समझने की जरूरत है कि जीन्स आर लाइक दे लोड द गन, मतलब एक हमारे हाथ में गन है, बंदूक है, जीन्स उसे लोड करते हैं। ठीक है, लोड करते हैं, जैसे माउजर को लोड किया था ना, फिल्म में दिखाते हैं, लोड वो करेगा, जीन्स लोड कर देगा बिल्कुल। बट जो उसका ट्रिगर है ना, ट्रिगर वो आपकी हैबिट्स डिसाइड करती है, वो आपके हाथ में है। मतलब अगर आपकी जेनेटिक्स, मान लिया मैंने कि आपके फादर को, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, ओके, मान लिया कि आप प्रोन है, बिल्कुल है, बट आप अपनी करंट हैबिट्स को सुधार के उसको ओवरकम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। द लेटेस्ट स्टडीज जो है ना, जीन्स जेनेटिक्स की स्टडीज होती है, उसे एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। तो अब ये इंडिया में भी आ गई है, थोड़े से हायर उस पे है कॉस्टिंग पे, बट ये बहुत अच्छा तरीका है कि ये जानने का पहले से ही। क्या होता है कि हमें नहीं पता, हमारे बाप आज के टाइम में मेरे दादाजी को क्या था प्रॉब्लम, तो हम अपने जीन से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं शुरुआत में ही कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके हिसाब से करंट लाइफस्टाइल में वो हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। या इसके अलावा लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो मैं बताऊं इसके बारे में, या बोरिंग तो नहीं हो रहा है? और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, व्हाट डिड यू से? मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं इस मेंटल हेल्थ के, ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करने के बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स दे रहा हूँ, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? मैं बता सकता हूँ। और ये इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, एंड दिस सो मेनी थिंग्स आर देयर जो अपने खुद के हाथ में होते हैं, जो हम लोग सुधार सकते हैं। एंड आई थिंक थिंकिंग मैटर्स अ लॉट, कि जो अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, दैट इज अ बेस टू इट। कि जैसे आपने जीन्स का एग्जांपल दिया, तो इट इज इन आवर हैंड कि इफ वी आर चेंजिंग आवर थॉट्स। बट थॉट्स में भी मेनी टाइम्स ये देखा जाता है कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं कंपेयर टू द पॉजिटिव थॉट्स। मतलब अगर इवन इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, लाइक यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो किसी भी इंसान के, आई डोंट नो व्हाई, बट ह्यूमन टेंडेंसी है कि मेनी ऑफ द टाइम्स अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो, तो एक पॉजिटिव थॉट्स के पीछे 10 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, यू नो, टू क्लीन द नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू।
हाँ, ये होता है, सबके साथ होता है कि आई कॉल इट ANTS, ANTS, इट्स लाइक कि ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। कुछ भी आप करने जाते हैं, वही है, जैसा आपने कहा, हर किसी के साथ होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ नहीं होता। एक का पॉजिटिव काम वो करना चाहता है, एक पॉजिटिव थॉट का 10 नेगेटिव थॉट, ये हो गया तो वो हो गया तो ब्ला ब्ला ब्ला, 10 नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। अब इसके कई सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, क्योंकि ये बात हुई, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा फिलोसफी में बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ जो मैं क्लाइंट्स को बहुत फायदा हुआ है, मेरा बहुत पॉपुलर मेथड है। इस आई कॉल इट वन पेज मेथड। वन पेज मेथड इज दिस। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इस नेगेटिव थॉट में मैं ये भी मानता हूँ कि आपको किसी के लिए एंगर हेटरेट भी आ रहा है, आपको रिएक्ट भी करना है, आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है, वो भी नेगेटिव थॉट्स में आता है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, तब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या करिए, पेपर लीजिए, एक पेपर और एक पेन, एक पेपर पेन लीजिए, और अब आप उस पर लिखना शुरू करिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना सही है, कितना सच है। क्या मैं जितना बड़ा इसे अपने माइंड में बना के देख रहा हूँ, क्या ये इतना मैटर करता है? अम, तो जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ओके, ये इतना बड़ा भी नहीं है जितना मैं इसको हवा बना रहा हूँ, इतना बड़ा मैं इसको ड्रैगन वाली पिक्चर दे रहा हूँ, ये है तो एक छोटा चींटी जितनी चीज। दूसरा, आपको समझने की जरूरत है कि क्या होता है कि जब हम ये लिखते हैं ना, तो अभी हमारी एजुकेशन लगभग लगभग सबकी 20-20, 25-25 साल की एजुकेशन होती है, ठीक है। हमें एजुकेट तो किया गया है कि पढ़ाई कैसे करें, बुक से कैसे बात करें, टीचर से कैसे बात करें, पेरेंट्स से कैसे बात करें, पर हमें खुद से बात करना नहीं सिखाया जाता, कोई नहीं सिखाता। यहाँ लाइफ कोचेस की हेल्प लेनी पड़ती है, वो ठीक है, बट हमें ये खुद सीखना पड़ता है, या कोई ना कोई गुरु आता है हमारी लाइफ में, मतलब खुद का इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सेल्फ इवेल्युएशन का प्रोसेस है। टेक अ पेज, टेक अ पेन पेपर, और आप लिखिए। जैसे आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ मत, मैं आपको कुछ सोचने के लिए फिलोसफिकल चीज मैं कह ही नहीं रहा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लिखिए, ओके ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जब आप उसे पेपर पे लिखेंगे ना, इस लाइक फिजिकल फॉर्म में, तो आप देखेंगे अरे यार, मैं तो बिना मतलब के इससे हवा बना दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीज है, पर बहुत पावरफुल चीज है। जब आप इसे फॉलो करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि जब आप लिखना शुरू करेंगे, आपको इतना बड़ा हुआ क्यों बना दिया, सेल्फ क्वेश्चनिंग शुरू होगी। फिर अपने आप से आप एक क्वेश्चन और पूछिए इसमें कि विल इट मैटर, 1 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद, मैं इसको इतना हवा बना रहा हूँ, अपने माइंड में इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो ये एक हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद मैटर करेगा मेरी लाइफ में, जितना मैं इसे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इतनी स्पेस दे रहा हूँ। तो इन सब चीजों से क्या होगा, 99% नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। और कई बार हमारे जो सो कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो कई बार उन पे हमें काम करने की जरूरत भी होती है, हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी होते हैं, या कई बार कॉशनरी होता है, हमारी इंट्यूशन बीच में आ रही होती है, वो ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट चीज है। बट इस तरीके से आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे बहुत हद तक उन्हें कर्व कर सकते हैं, उस पर लगाम लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस लग रहा है, बट जब आप इसे फॉलो करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस। ओके। तो जैसे यू टोल्ड कि किसी ने हर्ट किया हो, या देर आर समटाइम्स वी कैरी द एंगर, मतलब किसी से झगड़ा हो जाता है या कुछ भी, बैक बीचिंग बोलो या वॉट एवर, तो हम लोग ये एंगर कैरी करते रहते हैं कि सो दिस थिंग, द प्रोसेस दैट यू टोल्ड, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट टू। क्योंकि क्या होता है ना, जब नेगेटिव थॉट्स हम लोग कैरी करते हैं, तो पीस ऑफ द माइंड अपना ही जाता है, सामने वाले का कुछ लॉस नहीं होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बैक योर पीस ऑफ माइंड। तो हाँ, वो, बट अभी जो आपने एग्जांपल दिया ना, अभी आपने हाँ, बोला कि हाँ, नेगेटिव थॉट्स के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा, बट अभी क्या है कि मेरे को किसी ने हर्ट किया, मुझे हम्म, हर्ट किया, अब मेरे मन में हेट्रेड है उसके प्रति। हम्म, अब वो हेट्रेड जो है, वो मुझे समझने की जरूरत है कि कैसे मेरा पीस ऑफ माइंड, इट्स लाइक कि आप खुद अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक कि यू आर बर्निंग इनसाइड, है ना। हम्म, होता है किसी ने आपको मुंह पे गाली दे दी, किसी ने आपके बारे में गलत बोला, जैसे भी आपने बोला, तो ये सब चीजें हर्ट करती हैं आपको। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि आपका पीस ऑफ माइंड ना खोए। आपको हमें ये समझने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा करता है, तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें ब्रॉडर टर्म में देखने की जरूरत है कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया और वो कितना मैटर करता है। किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया,
तो लॉन्ग टर्म में वो कितना मैटर करेगा, हमारी जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। बट ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात हो जाती है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि किसी ने आपको गलत बोला आप उसके बारे में अच्छा सोचो, माइंड हमारा ऐसे काम नहीं करता। तो मैं उसके लिए आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट किया, ओके, मतलब आपके बारे में बैक बिचिंग करी, आप उसकी मदद करना चाहते थे, उसने गाली दी आपको, किया, तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जो वो आज है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं है, उनके पास्ट का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। जब मान लीजिए हमें कुकिंग करनी है, ओके, पाव भाजी बनानी है, तो पाव भाजी में, पाव भाजी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, है ना। पाव भाजी बनानी है हमें, तो एक पाव भाजी गलत कैसे बनेगी? अगर उसके इंग्रेडिएंट्स सही नहीं डले, उसे ढंग से पकाया नहीं गया, मसाले सही नहीं डाले गए उसमें, तो पाव भाजी गलत बनेगी। पाव भाजी माउथ लिकरिंग, माउथ वाटरिंग कब बनेगी? जब उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डाले गए हो, एक एक इंग्रेडिएंट डाला गया हो, मसाले अच्छे से डाले हो, पकाया अच्छे से गया हो, ओके। इसी तरीके से लोग होते हैं, मतलब जब लोग आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है इस दुनिया में, जब वो पैदा होते हैं तो उनका एक इंटेलेक्ट, प्रज्ञा, उनके जीन्स होते हैं उनके साथ, और वो जब बाहर आते हैं तो अब उनका इंटरेक्शन होता है, उनकी जो वर्च्यूज लेके आते हैं ना, वो इंटेलेक्ट और अपने जीन्स, अब वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन होना शुरू होता है। बाहर का एनवायरनमेंट मतलब उनके पेरेंट्स की हैबिट्स, उनके पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल, उनके पेरेंट्स पर्सनली कैसे हैं अपनी लाइफ में, उनका नेबरहुड, वो किस स्कूल में गए हैं, उनके टीचर्स कैसे थे, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं उनकी लाइफ में। जैसे मैंने पाव भाजी का एग्जांपल दिया, तो इंग्रेडिएंट्स उनके वर्च्यूज के साथ मिलके उनकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो आज इंसान है वो रिपीटेटिवली उसके एनवायरनमेंट से, उसके जो वर्च्यूज थे उनका रिएक्शन हुआ, वो पके, साथ में कुकिंग प्रोसेस हुआ, और वो वॉयला, अब जो आपके सामने इंसान है, जो प्रकट है, वो है। तो आपको अपने को समझाने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि आपको किसी ने हर्ट किया है तो वो ऐसा इंसान, वो गलत इंसान नहीं है। जब आप इस पर्सपेक्टिव से समझते हैं ना, इस पर्सपेक्टिव को डेवलप करते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स थे, उसके पास्ट ने उसे शेप अप किया। मैं बहुत बड़ी बात ये होकर मैं ये कहूँ कि पीपल आर पपेट ऑफ देयर पास्ट, ओके। उनकी पर्सनैलिटी शेप अप होती है, सब कुछ शेप अप होता है। जब आप ये समझना शुरू करेंगे तो आप फिर उन्हें जिम्मेदार ठहराना बंद कर देंगे। आपको समझ में आएगा कि ओके, ये इस बंदे की गलती नहीं है, तो ओके, अच्छा इसकी गलती नहीं है तो मैं इसके पास्ट को कोसता हूँ, मैं पास्ट को कोसूं, पास्ट में किस चीज को कोसूं, इसके पेरेंट्स को कोसूं, इसके स्कूल टीचर को कोसूं, इसने ऐसा किया है। तो जब आप रिलेवेंसी खत्म हो जाती है, जब आप पास्ट में जाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है फालतू चीज है ना। तो इस तरीके से अब आप उस इंसान को भी ब्लेम नहीं कर रहे, और आपके पास ब्लेम करने के लिए बेसिस ही खत्म हो गया। तो शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो किसी ने आपको हर्ट किया, थोड़े टाइम बाद आप अपने आप को समझा पाएंगे। जो मैं आपको प्रोसेस बता पा रहा हूँ, ब्यूटीफुल प्रोसेस है, मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था, मैं सबको बताता हूँ। उसके बाद आपने फॉलो किया तो अब धीरे आपने वो मेंटल पीस अचीव कर लिया, रिसेंटमेंट खत्म हो गया उस बंदे के प्रति, उस इंसान के प्रति। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आप फर्स्ट इंटरेक्शन में ही, आपने मुझे गाली दी, मैं हर्ट होना खत्म हो गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये सुपरफिशियल चीज नहीं है, किसी बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। एंड मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, वर्क्स, और यू कैन फॉलो इट, ऑल एवरीबडी वॉचिंग कैन फॉलो दिस प्रिंसिपल। जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना कि किसी के पास्ट के लिए उसे हम वो नहीं कर सकते, इंग्रेडिएंट्स, पाव भाजी मेथड ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हमारा मेंटल पीस बना रहता है, हमारा रिलेशनशिप। जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था, हियर आल्सो यू डिस्कस कि टू गाइड यू, मतलब जो हीलर्स होते हैं या इवन इफ वी वांट टू प्रैक्टिस समथिंग यू नीड अ गुरु। बट ये देखा गया है कि इन रीसेंट ट्रेंड कि बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ पीपल ऑनलाइन पोस्ट करते हैं कि बिकम अ सर्टिफाइड हीलर, बिकम दिस, बिकम दैट, एंड दे कॉस्ट, जो उनकी फीस भी होती है
बहुत ज्यादा होती है, कई कई की तो मेजोरिटी ऑफ देम आर इन डॉलर्स. सो ओके हाउ सर्टिफाइड दे आर, हाउ वो लोग, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि आप ऑनलाइन बैठ के कैसे किसी को हीलर बना सकते हो. बिकॉज इवन इन आवर डांस यू रिक्वायर समबडी, यू रिक्वायर किसी का गाइडेंस चाहिए ही चाहिए आपको. नो मैटर आप कितना भी सीख लो, जैसे यू सेड कि लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो ये चीजें जो है, तो हाउ सेफ इट इज, या ये फेक है, तो व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? ओके ओके. माई कॉल इज कि ना वो आउटराइटली फेक है, ना वो आउटराइटली बिल्कुल सब जेन्युइन है. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं भी जानता हूँ कुछ ऐसे कोचेस को, वर्ल्ड क्लास कोचेस को, जो अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स दे रहे हैं. और जैसा आपने बताया, बिल्कुल मैंने भी देखा कि कई न्यू बर्ड्स जिनका कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. तो आपको ये देखने की जरूरत है कि जिस कोच से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है. इट्स लाइक कि यू कैन टेस्ट द वाटर बिफोर गोइंग इनटू अ पॉन्ड, इनटू अ लेक. मतलब आप जब भी नहाने जाते हैं किसी पॉन्ड में, लेक में, तो आप पैर टच करके या हाथ से देखते हैं कितना ठंडा पानी है ना. तो इट्स लाइक कि आप, अगर आपको फर्स्ट इंस्टेंस में उनकी बातें कंड्यूसिव लग रही हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, आपको वो हिट कर रही है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ कॉशियस अप्रोच कि आप ट्राई करें पहले उनका कोई प्रोग्राम छोटा सा जिसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता. और अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कि इट्स द सेम थिंग. देखिए, कोच बेस्ट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है कि 100% वो आपके लिए काम करे. टोनी रॉबिन्स इज द बेस्ट life coach in the world right now, you know that, है ना. he's the guru, he's the महागुरु in this field. but टोनी रॉबिन्स भी हर किसी के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता. इट्स लाइक कि एक फॉर्मूला हर किसी के लिए फिट नहीं हो सकता. हाँ, एक अच्छे कोच का यही डिफरेंस आ जाता है एक नॉर्मल कोच से, फेक गुरु, फेक टीचर से, कि वो जानता है कि कैसे मॉडिफाई करना है अपनी टर्मिनोलॉजीज को, मेथोडोलॉजीज को अपने क्लाइंट के हिसाब से, अपने स्टूडेंट के हिसाब से. तो ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, इसमें आपको क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी, टेस्टिमोनियल देखने पड़ेंगे, उनके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना काम किया है. फिजिकल लेवल पे क्या होता है कि आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, दूसरे आप उनके क्लाइंट से पूछ सकते हो. तो आप ये देखिए कि, पर आजकल ऐसा ना हो कि टेस्टिमोनियल्स भी फेक है. इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, बहुत कॉशियस अप्रोच देने की जरूरत है. पर देखिए कि कोशिश करिए इनका पास्ट वर्क क्या है, या फिर वो जो टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो वो बातें कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, वो आपको रेजोनेट हो रही हैं. हो सकता है कि कोई अच्छी बातें कर रहा हो, कितनी अच्छी बातें कर रहा हो, बहुत अच्छा टीचर हो, और आपकी जरूरत ना हो वो वाली हीलिंग की, उसकी. तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है. तो हम इस कैटेगरी में न डाल के कि फेक है या नहीं है, किसी को हम फेक नहीं कह रहे, या किसी को आउटराइटली नहीं कह रहे कि ही इज द बेस्ट. हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमें इसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, हम इसके साथ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो रही है. आपको भी पता होगा कि जैसे आपके फील्ड में है, भरतनाट्यम इज अ ब्यूटीफुल डांस फॉर्म, बट आई नो पर्सनली इन दिल्ली ऑल्सो, और जगह जगहों पे हैं, बहुत छोटे छोटी जगहों पे भी खुले हुए हैं, कोई भी मतलब. बट इट्स लाइक कि आपने इतनी बड़ी डांस अकेडमी खोली है, आपके टीचर्स हैं, आपने एक गुरु से सीखा है जो बहुत बड़े, उनकी क्रेडिबिलिटी थी. अब मैं जानता हूँ कि आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई है इस फील्ड में. तो ये एक प्रोसेस है. बट हाँ, ये भी जरूरी है नताशा कि शुरुआत में ना, क्या होता है, शुरुआत में हर किसी न्यू कमर को भरोसा करने वाला चाहिए होता है उसके ऊपर. जब आपने शुरू किया होगा या मैंने शुरू किया होगा, तो शुरुआत में क्या होता है, हर कंपनी को एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए होते हैं, हर इंसान को एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए होता है, पर एक्सपीरियंस कोई देना नहीं चाहता, प्रेशर को कोई रखना नहीं चाहता. तो इसी तरीके से, है ना. तो इसको इस तरीके से ना लेके कि कोई फेक है या नहीं, हमें ये आइडेंटिफाई करने में काफी एनर्जी वेस्ट करनी. हमें ये देखना है हमारी सिनर्जी किसके साथ बैठ रही है, हमें किसकी बातें समझ में आ रही है, किसके मेथड्स हमें लग रहा है कि हमें काम हेल्प करेंगे. लाइक वी कैन डू लाइक दैट. माय अदर क्वेश्चन इज कि मेनी ऑफ द टाइम्स हम लोग एक क्या बोलते हैं कि गोल सेट करते हैं. मेनी ऑफ द टाइम्स गोल की वी वांट टू अचीव दिस, बट ड्यू टू दिस और दैट रीजन फेलियर हो जाता है. मतलब समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डोंट वर्क. सो हाउ टू डील विद दैट? उससे भी कई बार ऐसा हो जाता है, लोगों में नेगेटिविटी हो जाती है कि मैं कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकता, आई एम अ लूजर.
सो वो जो टेंडेंसी है या वो जो माइंडसेट बनता है उससे कैसे डील करना चाहिए? ओके, एक्चुअली क्या होता है कि हमने ना गोल सेटिंग एक वर्ड सुन लिया लोगों ने, और हम आंख बंद करके उसे फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? गोल सेटिंग क्या है? गोल, आप इस एग्जांपल समझिए कि गोल सेटिंग इज एग्जैक्टली लाइक कि फुटबॉल के मैदान में एक गोल पोस्ट है, तो आपका गोल है कि आपको बॉल उसके अंदर डालनी है, गोल हिट बॉल करनी है। बट आपका जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टम है, ड्रिबल कैसे करना है बॉल को, कैसे टैकल करते हुए प्लेयर्स को, सॉरी ड्रिबल इज इन बास्केटबॉल, कैसे टैकल करते हुए लेके जाना है और वो गोल करना है, वो जो पूरा सिस्टम है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ एंड गोल पे ध्यान रखते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता। मतलब इसका कि आपने माइंडसेट के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो माइंडसेट बनता भी क्यों है। तो उससे तभी टैकल कर पाएंगे जब इस चीज को समझ पाएंगे कि हम गलत चीज पे दुखी हो रहे हैं। गोल का सोच के हम दुखी नहीं हो सकते जब तक हमारे सिस्टम सही नहीं होंगे। हमें क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम, वो इट शुड बी लाइक अ स्टील, इट शुड बी लाइक अ 100% बेस्ट। हमारा प्रोसेस जबरदस्त होना चाहिए। प्रोसेस और सिस्टम हमें क्रिएट करने पड़ते हैं अपने गोल के लिए, कि वो जब उसे हम फॉलो करेंगे तो कैसे, कभी भी देखिए, कोई मेरे पास, मेरे क्लाइंट आते हैं या मैं किसी को हेल्प करता हूँ, तो वो मुझसे बोलते हैं गोल। जैसे मैंने आपको बताया भी कि एज ए लाइफ कोच मैं क्या हेल्प करता हूँ, गोल पहले उसमें बता दिया उन्होंने। ओके, उनका गोल है, उन्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है, मतलब किसी सॉल्यूशन चाहिए या ये अचीव करना है। बट वो सिर्फ गोल हमारी डायरेक्शन तय करता है कि वहां जाना है, बट कैसे जाना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ दिख रहा है कि वहां जाना है, और आप किस तरीके से जाना है वो डिफाइन नहीं करेंगे ना, वो डिसाइड नहीं करेंगे, तो वहां दिक्कत होती है। तो गोल क्यों जब गोल अचीव नहीं होता, तो हमें ये समझने की जरूरत है, ये पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। मैं फेलियर नहीं हूँ, ये गोल अचीवेबल है और लोगों ने किया है, तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ। सब ह्यूमंस बराबर होते हैं, सबका ब्रेन, सबका माइंड, सब के अंदर भगवान ने इनफाइनाइट पोटेंशियल देके भेजा है। तो गोल से अगर आप फेल हुए, गोल अचीव नहीं कर पाए, तो आपका गोल गलत नहीं था ना, आप गलत थे, आपका सिस्टम गलत था। इट्स सिंपल, चेंज योर सिस्टम, चेंज योर प्रोसेस, अब आप गोल अचीव कर लेंगे, है ना? तो अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्रिकेट का एग्जांपल है, मरवन अट्टापट्टू श्रीलंका के कैप्टन थे, ओके। बहुत फेमस कैप्टन थे, बट उससे पहले की जर्नी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मैं क्या क्यों बता रहा हूँ, गोल और प्रोसेस में फर्क। और ये वाला, ये इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि लोग हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, डिप्रेस हो। क्या था कि मरवन अट्टापट्टू, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, श्रीलंकन प्लेयर है वो, श्रीलंका में फाइनेंस से पढ़ाई करी थी, पर क्रिकेट उनका पैशन था। उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ। इंटरनेशनल, सबका, किसी भी देश के खेलने वाले का सपना होता है इंटरनेशनल टीम में होना अपनी। श्रीलंका की टीम में सिलेक्शन हुआ। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 0, दूसरी इनिंग्स में 0, उन्हें निकाल दिया गया। वो वापस गए नेट्स पे 2 साल बाद, 17 महीने बाद, स्पेसिफिकली 17 महीने बाद उन्हें दोबारा मौका दिया गया। उन्होंने वहां बहुत अच्छे रन वगैरह बनाए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। दोबारा से वो आए, दोबारा से 0-0, एक मैच के बाद वापस भेज दिया गया। अब लगभग 25 मंथ्स उन्होंने फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, और रनों का अंबार बना दिया। ठीक है, अब वो दोबारा, उन्हें 25 महीने बाद मौका मिला, वो आए टीम में। इस बार उनका स्कोर था 0 एंड सेकंड इनिंग में 1। दोबारा से उन्हें निकाल दिया गया। 3 साल तक उस बंदे ने कड़ी मेहनत करी। 3 साल के बाद वो टीम में आए। उन्हें उनके बारे में मीडिया में खबरें चलने गई, इसमें बड़े मैच का टेम्परामेंट नहीं है, ये नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अब इतनी बार फेल हो गया। ये वहां तो रन बना लेता है, पर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता। उनके पर वहां के परफॉर्मेंस को देखते उन्हें मौका दिया गया, और अब की बार To stop you, वीडियो इज गोइंग टू एंड, तो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तो वहीं पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, श्योर। या या वी आर बैक, एंड एक्चुअली द वीडियो का एंडिंग पॉइंट भी ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे आया, जब अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज गोइंग ऑन। आई होप ही जॉइन अस बैक सून, सो बिकॉज या ही इज देयर।
He's joining us back. Yes. Am I audible? Welcome back. Continue with your story. Yeah. Interesting तो नोट पे ही ब्रेक आ गया सीरियल्स की तरह. तो मरवन अट्टापट्टू सेकंड बार ड्रॉप हो गए, ठीक है. थर्ड बार 3 साल हो गए उन्हें. जब तीसरी बार मौका मिलने वाला था तो उनके बारे में बहुत बातें हुई कि बड़ा मैच का टेम्परामेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं डील कर पाएंगे. फिर भी जैसे तैसे उन्हें एक मौका दिया गया और उसके बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की. उसके बाद 15 से ज्यादा सेंचुरीज थी और वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ श्रीलंका रहे. अब हर कोई उनको जानता है, बट हर कोई उनकी सक्सेस स्टोरी को जानता है. बट ये समझने की जरूरत है, इस एग्जाम्पल की थी कि जब मरवन अट्टापट्टू फेल हो रहे थे और उन्हें बार बार वापस भेजा जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने आप को कंडेम नहीं कर रहे थे, अपने आप को ये नहीं बोल रहे थे कि मैं बेकार हूं या मेरा गोल बेकार है. नजरें उनकी गोल पे थी, बट वो अपने प्रोसेस पे, अपने सिस्टमेटिक प्लान को फॉलो कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप अपनी टेक्निक पे ध्यान दे रहे थे, अपनी चीजों को और निखार रहे थे. तो ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे गोल्स अचीव नहीं होते, गोल में कोई खराबी नहीं है. बिल्कुल देख लेना चाहिए कि गोल पोस्ट ठीक है नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट 99% केसेस में हमारा प्रोसेस गलत होता है. तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है. वो नहीं, प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान डी काम करेगा, बट गोल हमें हताश नहीं होना होता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने. एंड अगेन आई थिंक कि मेनी ऑफ द टाइम्स, मतलब करंट इसमें जो हम लोग देखते हैं, मेनी ऑफ द टाइम लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, लोग वो छोड़ देते हैं. तो आई फील कि लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कंटिन्यू रखना है और कंटिन्यू रहना भी चाहिए. दैट विल हेल्प यू फिगर आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. एग्जैक्टली. और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है सबके लिए, बट मैं ये कहूंगा वो तभी हो पाता है व्हेन वी आर फॉलोइंग आवर पैशन, व्हेन वी आर डूइंग व्हाट वी लव एक्चुअली. तभी वो कॉन्स्टेंट लर्निंग रहेगी, क्योंकि हमें प्रोसेस में मजा आता है, हमें आउटकम से कोई लेना देना नहीं होता. देखिए, लाइफ, व्हेन डज योर लाइफ बिकम ब्यूटीफुल, मतलब मजा कब आता है लाइफ में? जब आपको काम में मजा आ रहा होता है. जो उसका आउटकम होता है ना, फीस होती है आपकी या पैसे में मजा नहीं, दैट इज लाइक नो, मजा ही नहीं है उस चीज में. वो तो पहले भी हो रहा था मेरी लाइफ में, आपकी स्टोरी में भी बहुत लोग. जब हम अपनी पैशन फॉलो करते हैं ना, जो चीज हमें पता है इम्पैक्ट डाल रही है लोगों की लाइफ में, लोगों को हेल्प कर रही है, या जिसका जो भी पैशन हो सकता है, एनीबडी कैन डू दैट. तो वो काम में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जो मजा आ रहा होता है, वो दैट इज द थिंग. तभी हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर पाएंगे. तभी हम गोल ना अचीव होने से दुखी नहीं होंगे. तभी हम अपने गोल को तो वही रखेंगे, अपने प्रोसेस को चेंज कर पाएंगे. One, I think almost last or second last question probably. You also deal with school kids. आप school kids को भी coaching and all देते हो. तो how life coaching is beneficial for school kids? बच्चों में क्या उसका importance है, या how it helps them? Okay, life coaching is a very big term for school kids. See, मेरे पेरेंट्स एक क्लासेस चलाते हैं बच्चों के लिए, संस्कार शाला. Okay. संस्कार शाला इज लाइक इज अ स्कूल काइंड ऑफ थिंग, जो उनका आफ्टर स्कूल होता है, बट जहाँ संस्कार की बातें होती हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है. और ये मैं भी इस प्रोसेस पहले मैं भी चाहता था, पर जब मैं यहाँ से चला गया था तो मेरा छूट गया. तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू कंटिन्यू. अभी कोविड की वजह से ये स्टॉप्ड है, वरना बच्चे आते हैं, उन्हें इट्स लाइक कि वी गिव देम हैबिट्स, अच्छी बातें इन ऑल, जितनी भी चीजें हो सकती है सक्सेसफुली उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. समझने की ये जरूरत है नताशा कि क्या है कि बच्चों के साथ डायरेक्ट लाइफ कोचिंग नहीं हो सकती. क्यों? जैसे मैं भी आपको एग्जांपल समझा रहा था ना कि पीपल, जो हम एक मैच्योर्ड आदमी आपको हर्ट कर रहा होता है तो आपको बुरा लग रहा होता है, आपको समझने की जरूरत होती है उसके बचपन में क्या क्या हुआ है. तो उससे क्या होता है कि आपको ये समझना होता है बच्चे को ना, डिपेंड करता है फिर भी कि वो किस एज में है, पर स्टिल 90% केसेस में बच्चे को उसका एनवायरनमेंट और उसके पेरेंट्स शेप अप कर रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं
कि बच्चों की लाइफ कोचिंग से ज्यादा पेरेंटिंग में चला जाता है, कि वहाँ आपको उनके पेरेंट्स को चीजें सिखानी होती है। और बच्चे क्या होते हैं कि कभी भी आप जो उन्हें बोलते हो ना वो नहीं सीखते, कभी भी नहीं सीखेंगे। जो आप उनके सामने कर रहे होते हो वो सीखते हैं। Yeah. तो इट्स लाइक दे आर स्पॉन्ज, दे एब्सॉर्ब. सी, I also work for this thing, गर्भ संस्कार and parenting में. Like you give, it will you tell me give me a kid and I can turn that kid into whatever person you want. Example मैं simplify करके बोलता हूँ कि गर्भ संस्कार से लेकर एक बच्चे को शेपअप किया जाता है 7 साल की एज तक. क्या होता है, मैं आपको साइंटिफिक थोड़ा समझाता हूँ इसके पीछे क्या रीजन है. जब हम बच्चा पेट में होता है, वूम्ब में होता है, तब से लेके बस 7 साल की एज तक उसका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड फॉर्म हो रहा होता है. सबकॉन्शियस माइंड की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं उसकी बात क्यों करने लगा. क्या होता है कि जो हम आज हैं, जो हमारी एज है, हम इतने सालों से जो बने हुए हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग थी ना वो पहले 7 साल में हो चुकी. किसी भी इंसान की प्रोग्रामिंग 7 साल में हो जाती है. 7 साल प्लस 9 महीने. क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोडिंग होती है. अभी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है. जब तक हम 7 साल के होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है. जब कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है, हमें बाहर रिएक्ट करना नहीं आता है. 7 साल तक हम सिर्फ परसीव करते हैं चीजों को. जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमारे सामने हो रहा होता है, जो हमें बोला जाता है, वो हम परसीव करते हैं. अगर आपको पता हो, महाराष्ट्र से हैं, शिवाजी महाराज के बारे में सबको पता है कि उनको जो वीर क्षत्रिय बनाया, उनकी माता ने उनकी ट्रेनिंग वूम से ही शुरू कर दी थी और बचपन में. उसके बाद तो क्या होता है, हम अपने एनवायरमेंट, जो मैंने आपको पाव भाजी वाला एग्जांपल भी दिया था, वो बताया कि उसके बाद तो क्या होता है, जो आपकी वर्च्यूज डेवलप हो गए होते हैं ना पहले 7 साल में, और जो आपका एनवायरमेंट होता है, बस उसका रिएक्शन और वो खेल चलता रहता है. तो जो एक पर्सनैलिटी शेपअप होती है ना किसी की भी, जो उसकी हैबिट्स होती है, कोर हैबिट्स, वो 7 साल प्लस 9 महीने में डेवलप होती है. ओके, इसके पूरा एक साइंस है, कैसे एक प्रोसेस है. कैसे आप, अगर आपको अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है तो आप बना सकते हैं. आपके बच्चे को अपने डांसर बनाना है तो आप बना सकते हैं. उसकी प्रोग्रामिंग, इट्स लाइक प्रोग्रामिंग. आप कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे बनाते हैं, इट्स लाइक आप पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. प्रोसेस है, पूरी विद्या है, ये साइंस है, उसको फॉलो करके. बट इट्स अचीवेबल, और ये है. आप इस बात को किसी को भी देखेंगे, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको पुरानी कहानी आपने सुनी होगी अभिमन्यु वाली, दैट्स अ रियलिटी, है ना. वो वूम से सिर्फ आधा सीखा था जितनी से विद्या मिली. बट करंट टाइम्स में भी अब इस लेवल पे है, फॉरनर्स लेके इंडियन सब इतने जागरूक हो रहे हैं पेरेंट्स, कि वो बच्चों की ट्रेनिंग वहीं से शुरू कर देते हैं. क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि 7 साल के बाद आप चाहे फिर कुछ भी ट्राई करो, इट्स लाइक कि घड़ा भर चुका है, उसके बाद कितना भी पानी डाल. तो डाउनलोडिंग कब तक हो रही है, 7 साल की एज तक. तो डाउनलोड करने की एज तक आप उसे कितने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, कितनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. बट मैंने अभी यू सेड के 7 years, लेकिन जिनके लाइफ के 7 years जा चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोस किड्स, बिकॉज उनके लिए भी सॉल्यूशन है, बिल्कुल है. नंबर ज्यादा है एंड देयर आर, यही किड्स ज्यादा भरे हुए हैं सोसाइटी में. एंड इन लोग की जो मेंटालिटी है, लाइक रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक सपोज मार्क्स का मार्क है, सुसाइड कर लिया, वी आर नॉट एबल टू गेट दिस, तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. इनफैक्ट मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा भी है कि लाइक कभी मेरे भी क्लास में आते हैं बच्चे फ्रॉम सम अदर क्लासेस, एंड कुछ गलत सीख के भी आते हैं. तो एक मेंटालिटी नहीं होती है टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, या इवन इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक, तो एक मेंटालिटी नहीं होती, एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ. एंड जब तक आप कबूल नहीं करोगे, या जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे दैट यू आर रॉन्ग, you can't progress or you can't become right. तो ये जो टेंडेंसी है बच्चों में, how this thing can happen. ओके, तो ये जो टेंडेंसी बच्चों में आती है ना, ये भी हम ही बड़े लोगों से आती है. क्यों आती है? क्योंकि ये हमसे सीखा होता है उन्होंने, कि मैंने मम्मी को देखा है कि वो गलती करती हैं तो कभी अपनी गलती मानती नहीं है, बल्कि पापा को बोलती हैं कि आपने गलती किया था, इस वजह से मेरा ये रिएक्शन था. इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, है ना. थोड़ा सा मैं या पापा कर सकते हैं, ऐसा कोई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है. मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है
ये है किड्स में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है कि दे डोंट टेक एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट दे आर डूइंग, अपने एक्शंस के लिए दे दे डोंट वांट टू बी लाइक, उन्हें जिम्मेदार, वो चाहते नहीं कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, बट ये उन्हें समझाने की जरूरत है कि कैसे समझाएंगे हम उन्हें। एक तो कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं एज अ पेरेंट। देखिए बच्चा वही सीखता है, इस बात को समझ लीजिए। ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, बेवकूफ़ी थोड़ा सा हार्श वर्ड हो रहा है, बट नादानी होगी कि अगर हम ये सोचें कि हम तो कुछ भी करते रहें और बच्चा हमारा इज लाइक प्योर लाइक अ पायस हर्ट वो काम करे। ऐसा नहीं हो सकता। जो उसके एनवायरमेंट में है ना, वो ही शेप करेगा। तो कहीं ना कहीं उसके एनवायरमेंट को एज अ एडल्ट, अगर वो हमारे परिवार में है, हम हमारे पास वो आता है, तो अभी हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अभी वो 7 साल से ऊपर के आते हैं। मैंने आपको बताया संस्कार शाला चलती है, तो ऐसा नहीं है ना कि उसके बाद हम शेप अप नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट हमें इतने पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज मिले हैं कि उस 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास से उनकी जो फैमिली बताती है कि उनके अंदर वो चेंज आए, क्योंकि उनके एनवायरमेंट में चेंज हुआ। वो और बच्चों को ऐसा करते हुए देखते हैं। हमने उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया, देखा, बनाया कि ओके दिस थिंग इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। क्या होता है कि क्यों नहीं हम अपनी गलती मानते, हमें पता है कि गलती मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो एक्सेप्टेंस एज हमारी एल्डर्स है ही नहीं। तो हमें समझने की जरूरत है, जब कोई गलती कर रहा है ना या मार्क्स कमा रहे हैं, तो एज अ पेरेंट या एज अ एल्डर हमें बताने की जरूरत है इट्स ओके, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। और अपनी गलती हमें समझाने की जरूरत है अपने एक्शन से और अपने वर्ड से कि गलती एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, गलती एक्सेप्ट करने से कोई बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने गलती एक्सेप्ट करी है और वो अपने ऊपर काम करेगा। Yeah. तभी वो अपने इंप्रूवमेंट पे काम कर पाएगा। जो हर एवरी सक्सेसफुल पर्सन was an is a unsuccessful person who kept on continuing improvement, इम्प्रूवमेंट करता गया अपना, है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। तो ये उन्हें ये समझाने की जरूरत है कैसे एक्शन से और वर्ड से कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे तो तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और गलती एक्सेप्ट, देखिए हमें पनिशमेंट ऐसा भी देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें इतना हार्श लगे। एक्सेप्टेंस, जो मेंटल इश्यूज के साथ है, बच्चे भी बहुत डेलिकेट चीज होते हैं, उन्हें हैंडल करना इज अ आर्ट। पेरेंटिंग इज एन आर्ट। खलील जिब्रान इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएट एंड फिलोसफर, है ना, तो वो बच्चों के बारे में लिखते हैं। ये जितने ही पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा, कन्वे करना चाहूंगा, वो लिखते हैं कि बच्चे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और पेरेंट्स इस गलत फहमी में ना रहे हैं कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं, बल्कि उन्होंने आप पे एहसान किया है कि वो आपके थ्रू इस वर्ल्ड में आए हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शेप अप देम, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट योर राइट। उन पे कोई राइट नहीं है आपका। तो समझ, जब हम इस पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं तो हम समझ में आता है कि ओके इट इज आवर ड्यूटी, इट इज नॉट आवर राइट, इट इज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग दिस ह्यूमन इन अ मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। इसे इसकी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में शेप अप किया जाए जिससे ये अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और इस दुनिया की लाइफ को बेहतर बना सके। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन किया आपने, क्योंकि मैनी ऑफ टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो जल्दी पिक करते हैं एंड उनको जो आप सिखाते हो, मतलब मैनी ऑफ द टाइम्स मैं छोटे बच्चों को बोलती हूँ कोच द एल्डर वन, तो दोज किड्स आर लाइक नहीं ताई ने ये सीखा है तो दिस इज ओनली राइट, इफ somebody else is telling them ना ये गलत है, they will directly come and tell talk to me। तो कम्युनिकेशन भी उनका बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू द ग्रोन अप्स। हेलो, यू आर एबल टू हियर मी? हेलो, again there is a network problem no, not for the end of the session. Hello, let me get in there. Hopefully last moment technical problem. Okay, hope he joins back. Okay.
Thank you everyone for joining us. Sushil sir, Tamanna Tai, Ruchuta ma'am, thank you everyone for joining us. And actually, I need to thank every one of you कि जो लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैसेजेस बहुत पॉजिटिव सेंड कर रहे हैं. तो थैंक्स अ लॉट दैट यू आर लाइकिंग दिस सीरीज एंड वी आर हैप्पी अबाउट दैट. Let's see if let me try once more if he is able to join us back. Yeah, he's there. Yeah, last moment it got disconnected again. Not able to hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही. हमारी I don't know, fine, but क्यों हो रहा है ऐसा? Let's see. Okay, yeah, please continue. Actually, I was going to thank you. Thanks for joining us today and for guiding us so well. कि ये जो mental health का इतना मतलब क्या बोलते हैं ना कि it's up to us कि how to control it or how to improve it. तो many of the times हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते या खुद पे ध्यान नहीं देते and we keep on blaming things and फिर वो राई का पहाड़ बन जाता है. तो thanks for guiding us and I hope आपको हमको join करके अच्छा लगा. What was your experience? Definitely it was very good. सबसे अच्छा था आपके क्वेश्चंस जो थे वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत प्रोफाउंड थे और उससे मैं पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाया अपने नॉलेज को और मेरे को लगता है होपफुली सबको अपने एक्सपीरियंस को मैं सबको बता पाया. तो होपफुली मुझे लगता है कि जितने व्यूअर्स ने हमें देखा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा होगा, उसमें से इंफॉर्मेटिव निकलेगा. जितनी भी सारी बातें करी हैं ये एक्सपीरियंशियल है तो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो मेरा सबसे यही निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें जितनी बातें हुई हैं उनको और देखें उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. और मतलब ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पढ़ने का, क्योंकि और मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जैसा हम शुरुआत में बात कर रहे थे, कोई बात नहीं करना चाहता इसमें. अभी थोड़ा सा लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ द इशू, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड इस फिलोसफिकल एंगल से, प्रैक्टिकल एंगल से, साइंस एंगल से हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारी लाइफ को ये इफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से सोसाइटी हम लोगों की जिससे इफेक्टेड है उन्हें हेल्प कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. एंड वीडियो तो सेव रहेगा तो वी आर गोइंग टू शेयर इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो लेटर भी अगर जिसको चाहिए वो देख सकता है. एंड आई होप दिस ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइफ. So thank you, Gauravji. Thanks once again. See you. Welcome. Take care. Thank you. Bye. Namaste. Namaste.